Okay, so hello everyone, welcome back to Trading Pips. So, excited, yes. Okay, so here are we, and I have just blew up my account yesterday, last night. Yep, yeah, I blew up my account of $5,000, and too much frustrating for me for now, but it is what it is. You have to deal with that, and yeah, it's a lot of money for me for sure. So what I'm gonna do now is again we're gonna start trading. I will take a break for like a couple of days, maybe 2 to 3 days. Yeah, the market is totally irrelevant. It totally depends. It's when I started trading in 2023, I guess, lately 2023, the market was not operator based. Like we all used to say that Indian market is operator based, control किया जाता है Indian market को मीडियाज के द्वारा, certain politicians के द्वारा control किया जाता है. Certain peoples are there in Indian markets that control the market, but उस टाइम ये एक्सक्यूज़ दिया जाता था कि फॉरेक्स एंड गोल्ड मार्केट जो है वो सब किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, बट इवेंचुअली रिसेंटली कुछ पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कंट्रोल कर रहे हैं. दे न्यू व्हाट हैपेंस, वो लोगों क्या ही बोल सकते हैं. They know all the shits that are happening in the market right now, and they're using there for their own deed, own goods, and the market is irrelevant. Like even if I show you, market बहुत irrelevant हो चुका है अभी. कोई मतलब नहीं बन रहा है. कुछ भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो भी मैं पहले लेता था वही सेम स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बट इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है. लाइक फेक न्यूज़ आ रही हैं, assassinations का अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, एंड a lot of things. So it usually doesn't mean any sense in while trading, because I went in this market just because Indian market बहुत operator based था. So I went in this forex and gold market, commodities, metals market for that only. But eventually अब इसमें भी यही scenes हो रहे हैं due to some person that we all know. So yeah. Anyways, we'll still trying all these things again and again. That's after all it's market. So yeah. Okay, so let's begin. Even though I have blown up my account, but I will say you, I will just let you know some insights, some helps that you can use it while trading, some margins, some resistance, some supports, and some good, positive vibes. So yeah, let's go. First one, resistance here. Powerful resistance of 4 hour time frame. You wanna market ये zone तो invalid है, but इसको हटा दिया. I'll go with this. Again, retracement from here. Eventually मैं इसको थोड़ा और नीचे करना चाहूँगा. Perfect resistance. Let's see. Perfect resistance. Yeah, it's a resistance zone of a 4 hour time frame. Let's go to a proper support zone of a 4 hour time frame, which is over here. This support zone of a 4 hour time frame. Go low. Yep. Now we can see a Fibonacci retracement over here, a proper Fibonacci. Let me show you from this to this. इसके बाद यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, retracement लिया. Okay, it took a 0 point golden zone retracement and went up. Boom, this. So yeah, Fibonacci zone है यहाँ पे. So let's lower the time frame. Reset chart view. मेरे को सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना है. आई एम लुकिंग फॉर सेल साइड बिकॉज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड सेल पे है. इफ़ यू गो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है, सेल है. सी it's bearish right now, so I'm looking for a sell side, and yeah, so here it is. Again, I'm looking for sell side. I want it to retrace one more time over here at
this point. I'm putting an alarm over here. I'm looking for a sell side order. Eventually मेरा पहला SL TP यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ है, जोन है. 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ है. सो मैं यहाँ ही देखना चाहूँगा फॉर श्योर. यस, आई एम लुकिंग फॉर रिट्रेसमेंट ओवर हियर. सो या ये हो गया, ये डन है, ये डन है. ओके, सो अगर इसको ब्रेक करता है तो मेरा नेक्स्ट जोन जो होगा वो होगा ये. प्रॉपर क्लीन रेंज है, बट यहाँ पे मैं मेरा टीपी लगाना चाहूँगा एक बार इतना सा. यस, लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम्स एंड सी दिस अगेन. यस, सी प्रॉपर रेंज है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है मार्केट में. ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग का है, तो आई वाज लुकिंग फॉर अ सेल साइड एंड माय सेल साइड शुड बी this one, this to this. It's 1:3 more probably, but even if मेरे को और थोड़ा रिस्क कम करना है तो this, I know यहाँ तक तो रिट्रेस होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा. from this to this मेरा स्कोर कम गया. It's again 1:4. I guess more probably it's 1:1.5 into 3, 4, 5. It's 1:3 point something, I guess. Yeah. So yeah, मैं सेल साइड ही फोकस कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि गोल्ड का अल्टरनेट पॉइंट सेल ही हो रहा है, सेलिंग ज़्यादा हो रहा है. सेलर्स आर मोर एक्टिव देन द बायर्स. सो या, लेट्स गो टू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. अगेन मैनिपुलेशन, न्यूज़, दिस इज न्यूज़. ओके, जस्ट न्यूज़, दैट्स इट. सो विल क्लियरिंग ऑल द शार्ट्स. आई नो ये सब मैंने पहले ही मार्किंग करके रखा हुआ है. मैं इस पर ट्रेड भी कर रहा था, लाइक यहाँ पे बाय किया था एंड यहाँ पे सेल किया था मैंने TP1 लगा के, एंड यहाँ पे TP2 पे सेल किया था मैंने. सो या, लेट्स सी अगेन. लेट्स जस्ट erase all the drawings and 4 hour time frame. Again I will draw you in front of you. Good support, good resistance was over here, fake breakout, ट्रैप किया यहाँ पे बायर्स को. बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, दैट्स माई स्ट्रैटेजी. इफ देयर इज अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन अबव द रेजिस्टेंस, सपोज मैं अगर होऊंगा ना, मैं मेरा एसएल कैसे हिट करूँगा मैं बताता हूँ. मैं देयर इज अ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग, राइट? सो आई विल शो यू द कॉन्स. ओके, सो एक सेकेंड. ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी नो, लाइक नहीं, मेरा ऐसा हिट नहीं होता फॉर श्योर इसमें तो, बट स्टिल मैं एक बताता हूँ. सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये सबसे प्रीवियस ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, रेजिस्टेंस यहाँ से था. तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लाइन खींच और पर टान दूँ ना, तो सी सेम सीन. आई डोंट न्यू अबाउट इट, बट आई न्यू कि ये रिवर्सल यहाँ से हो सकता है. ये तो क्लीन रेंज था, दिस वाज अ क्लीन रेंज फ्रॉम मी, बिकॉज ये सपोर्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम का. Let's see 4, it's a good support. It was a R1, 4 का R1. ये भी 4 आवर का टाइम फ्रेम का गुड रेजिस्टेंस है, ये भी 4. सो या, इफ आई सी, यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है मार्केट. सी, सो लेट्स सी, इट्स रिकॉर्डिंग स्टिल, आई डोंट नो. या इट्स रिकॉर्डिंग. सो या, रिवर्सल हुआ है यहाँ पे. तो मैं अगर होता तो मैं शायद ही ट्रेड करता, क्योंकि मेरे को पता है कि सबसे क्लोजेस्ट रिवर्सल यहीं पे है. बट अगर ये यहाँ तक पहुँचता तो मेरा नेक्स्ट सबसे क्लोजेस्ट रिवर्सल यहाँ पे था. इतना बड़ा रेंज, मैं रेंज दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा रेंज होता. अगर ये इसको ब्रेक करता, सॉरी, अगर ये इसको ब्रेक करता एंड इसको जो यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस, इसको ही ब्रेक करता एंड वो यहाँ पे प्राइस आके रिएक्ट करता, यहाँ पे ग्रीनिश कैंडल एक फॉर्म होता, तो इतना बड़ा एक रेंज मेरे को मिलता, जो कि है 100 पिप्स से ज़्यादा का रेंज. तो मैं ये ट्रेड लेता, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेड नहीं लेता एंड अभी मैं सेल ट्रेड ही लूँगा. बट मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, बहुत लोग
ये जोन्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसके चक्कर में वो लोग ट्रैप हो जाते हैं. दैट मीन्स इफ someone is trading over here, and suppose currently I want to trade, what I'm going to do like right now, so I'm going to take a short order over here because all I can see in a 15-minute time frame also I have seen what, let me show you, good rejection, breaking the zone, continuation, रिट्रेसमेंट का ट्रैप करने का ट्राई किया गया, बट अगेन कंटिन्यूएशन हुआ है सेल साइड का, सेलर्स एक्टिव है काफ़ी. एंड करेंटली इट्स सैटरडे, तो मंडे पता नहीं क्या मार्केट खुलेगा, तो लेट्स सी. अगेन अगेन मैं क्या करूँगा यहाँ पे. सो व्हाट आई एम गोना डू इज दिस शॉट हियर, एस एल अबव दिस जोन, रेजिस्टेंस यहाँ पे तगड़ा है, पहला टीपी होगा यहाँ पे. नो, आई कैन टेक अ क्लीन रेंज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. यस, so yeah, काफ़ी clean range है, so you can do with that. So yeah, that's what I want to say. And soon I will be buying some new accounts and we will trade in that, and I will just try to show you how the payout work in different funded apps. So yeah, it's a bit hectic that on one prop firm you are just giving a year. And one more thing, I was using a goat funded trader account, and let me show you, I guess I do have over here. Yeah, I'll show you how they scam us. Okay, wait. This is my AUD USD का time frame का. Okay, I'll show you 5% guide login. Where is it? Code funded trader here. I'll edit this for sure. Don't worry. Here. Yeah, account has been, wait, blocked. Why blocked? I don't know. If I view my dashboard, all I can see is I was into a profit. Daily drawdown was $30 left. Max drawdown was over here. एवरेज लूजिंग ट्रेड ये था $14 में, प्रॉफिट में ही था इवेंचुअली, बट स्टिल मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया. आई डोंट नो व्हाई, बट this is hectic, this is shit, and I won't be using this, nor I will be suggesting you to use code for trader because that's fake. So thank you for watching, thank you for your time, hope to see you soon.